Just give us a second. There's some technical difficulty. Am I audible now? नाही ते लॅपटॉपचा आवाज आहे ना तो पण म्यूट करायचा म्हणजे एको येत नाही. Very good morning to all the students. I congratulate all the students first because for their success. I think this year it is a very notable success for all the students. All the students have got very good marks. But somewhere in the corner, students, teacher, and the parents, everybody knows that this was not the real test of the knowledge for the student, and therefore we all should be prepared for facing more challenge and the right choice of the further journey in the education academy. As this our NKT college has opened many opportunities for the 12th standard students after completing their HSC. We started from the last 10 years in self-finance section. We started BMS, we started BSCIT, then banking and insurance, and then last year back, that is accountancy and finance. Now, considering the media exposure and the importance, the management thought of opening the new course for particularly in the graduation course in mass media, and therefore this year we are coming up with new course that is BA in mass media and communication. In the further plan, the college is in 2-3 years we are going to come out with the law college for the students. So the whole idea is that all the students who are passing 12th standard from this NKT Junior College should get enough opportunities to select so that they did not have to leave the campus till they complete their graduation and also the post-graduation, because we already have the MCOM over here in accountancy and as well as in the business management. So without taking much time, I stop over here and over to you, Manisha. Thank you, sir. I would now like to introduce our speaker and resource person for the session, Professor Amay Park. Sir has a stupendous 15 years experience in mass media and in content writing. He's also done voiceover and anchoring for All India Radio and Zee Media and Doordarshan. He has a 12 years experience in mass media teaching. He's also associated with top colleges of Mumbai, that is Vazay College, Birla College, Saki College, Ria College, just to name a few of them. He's also a guest column writer in Dabang Dunia Hindi Daily. He has published 6 textbooks for BMM and BA MMC and also published
various research papers. Coming to his achievements and awards, Sir has chaired as a Vice Chancellor nominee and a subject expert in interview panel. He has chaired as a Board of Studies member of BAMCJ course in Somaiya Vidyavihar University. He was associated as a member of BMM examination, paper setting, moderation, and examiners committee of University of Mumbai. Sir has delivered guest lectures in Luhya College, Joshi Bedekar College, Mehta College, in our college, that is NKT College, SNDT University, ABVP, etc. Sir has also been awarded as a best teacher by the Institute of Scholar, Bangalore. His hobbies and interests are also varied. He has written and recited his own poems in many poetry recital platforms and accompanied many classical and semi-classical concerts on harmonium, and also hosted over 150 musical concerts. So we have a resource person today who can really take you to a journey of the exciting world of BMM. So over to you, sir. Thank you for the introduction, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, students, and congratulations for your success. Now, it has been a very interesting year for all of you in this pandemic. Okay, preparing for your examinations, and then there is no examination, and then there are different permutation and combinations. So you have gone through a different level of stress. So, and after result, immediately there is another stress coming to you, that what to choose, how to choose. Okay, so today I'm going to discuss about what media and multimedia can have a good opportunities in career. Okay, sorry, can you give me access for the slide? Screen's presentation. Okay, so don't worry, I'm not going to give a bhashan or what you say, so-called pravachan here. Okay, shall I? Okay. Okay, so I'm not going to give you bhashan or lecture or anything. We will interact. For first 15 to 20 minutes, I'll talk, and then we will have interaction. So whatever your doubts are, okay, based on that, we will continue with the further lecture. So first, let us see. Hope you can see this. Is it visible? Okay. So multimedia and career opportunities. For multimedia and mass communication, we have University of Mumbai's 3-year degree course, that is BAMMC. Earlier it was known as BMM. 2 years back only the name was changed, and the content and syllabus was also upgraded according to the needs of the industry. Okay, so it is Bachelor of Art in Multimedia and Mass Communication. That is the degree course we are going to discuss today. Okay, so first let us discuss what is multimedia, because this is the basic question. Sir, you are talking about multimedia, but let us tell that what is multimedia. You all are living in multimedia today. Okay, the definition of multimedia is on your screen. That is representation of information in attractive and interactive manner with the use of combination of text, audio, video, graphics, and animation. So basically, in other words, it means that multimedia is a presentation of information using multiple formats like PPT or graphs, pie chart. In audio format, it is podcast, audio files. In video format, you all know YouTubers. Okay, they are the multimedia players in today's world, and other format of videos and animation. So that is basically multimedia. Then the question arises: if multimedia is there, then what is mass media, or what is the difference? So it's very simple. Mass media refers to the widespread delivery of content, which means
there is a huge crowd, and through a medium, through a medium, uh, we are transforming information to that huge audience. That is, you have seen YouTube lives, you have seen many live videos, okay? You have seen live concerts also, okay? So that is what is mass media. Then what is multimedia? The content what is delivered through mass media, that content creation is done through multimedia. Okay, the method, the media which is used to create that content. So YouTube is a platform where you can, reach to many people at same point of time. Okay, but there are softwares like OBS or other video screen recorder software, which is basically create that content. So that becomes multimedia. I hope you have understood. Okay. Now, this is the structure of BA MMC. See, semester 1 and 2 subjects are there: effective communication skills, foundation course, fundamentals of mass communication. It is not master communication. Then visual communication is the new subject that is introduced, where if you remember, in somewhere around 9th or 8th standard, you are dealing with the drawing and it is sometimes hilarious. Okay, but there are few who are master in creating images or pictures. So for them, this subject will create a different dimension. Okay, then current affairs. I hope you are reading day-to-day newspaper, not for the purpose of result kab lagega, but to get known what is going around you. So that all will be incorporated in this subject. Then history of media, where it began. Okay, then effective communication skills 2, foundation course, content writing, introduction to advertising, introduction to journalism, media and gender, media, gender and culture. Okay, in semester 3 and 4, the advanced level, motion graphics and visual effect, which is basically extension of visual communication. Corporate communication and public relation is extension of effective communication skills. Media studies is extension of history of mass media. Introduction to photography is a new subject. Everybody has a camera in their mobile, and you have your Instagram account, so you know how to deal with the photography, but that is not the real photography. But you will learn that what is real photography here. Film and communication, computers and multimedia, that is part 1, part 2. Then film communication part 2, mass media research. So these are the basic subjects. Now, why I have to pursue this degree course? And for that I am here. Okay. कि सर हम BA करते हैं, हम BCom करते हैं, तो हमें पता है ये एरिया में हम जा सकते हैं. BA MMC करने के बाद क्या होगा? Let us look. So basically, BA MMC or any media course falls under 5 different fields. Those are advertising, journalism, filmmaking and photography, public relations, and marketing. Okay, so these are the major 5 fields where you will get jobs after doing BA MMC. I have seen, or in my 12 years teaching career, I have observed that many students get job in TY only, because in this particular course there is one thing which is not mandatory, but you have to do, that is internship in various media to get experience, to get practical exposure to what is going to be teach in the class. क्लासरूम में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए, बट जब आप उसी थियरी को इंटर्नशिप के थ्रू प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, देन इट इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू यू. एंड मार्क माय वर्ड्स, इफ यू डू इट डेडिकेटेडली, यू विल गेट योर जॉब इन TY1. जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे ही आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस इज माय एक्सपीरियंस. ओके, सो लेट अस सी ये 5 जो फील्ड्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. फर्स्ट वी आर
starting with the advertising. Role and positions what we have, media planner and buyer. आप अभी 12th में हो, ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ये समझने में, लेकिन आपको इजी वे में समझाता हूँ। मीडिया प्लानर बायर क्या होता है? आप न्यूज़पेपर रोज देखते हो, आप टेलीविजन देखते हो, वहां पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ओके, तो वो कौन से टाइम में कौन से प्रोडक्ट का एड आएगा, उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी और वो प्रोडक्ट बनाने वाले मीडिया प्लानर और बायर रखते हैं, और टेलीविजन के साथ, न्यूज़पेपर के साथ टाइप करके वो अपना स्लॉट परचेस करते हैं। तो वो स्लॉट परचेस करने का और प्लान करने का जो काम होता है वो मीडिया प्लानर बायर का होता है। क्लाइंट सर्विसिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आपको जो क्लाइंट है, ओके, उनको लेके आना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अपना लोगो, अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाते, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाती है। तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्लाइंट सर्विसिंग का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एंट्री पॉइंट है क्लाइंट के लिए या किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए। सो फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, लेकिन एचपी कंपनी खुद का एड नहीं बनाती। या फिर आप अगर अमूल के जो कार्टून्स आते हैं न्यूज़पेपर में, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, तो इट इज नॉट डन बाय अमूल, देयर इज एन एड एजेंसी नेम डाकुना, हाँ, वो ये बनाते हैं, ठीक है। तो वो एड एजेंसी, कॉपीराइटर एंड क्रिएटिव्स, ये भी एड एजेंसी का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट में क्या मैटर लिखना है, उसको कैसे डिजाइन करना है, ये सब कॉपीराइटिंग एंड क्रिएटिव्स के अंडर आता है। इलस्ट्रेटर, अमूल की वो जो मैस्कट है, वो जो लड़की है आप अमूल के एड में देखते हो, उसको बनाने का काम जो करता है ना, उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो ऐसे कई सारे ब्रांड्स में मैस्कट्स हैं, हाँ, वोडाफोन के जूजू है, ओके, तो वो इलस्ट्रेशन का काम होता है। मार्केट रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मार्केट में मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, ओके, वहां पे वो बिकेगा कि नहीं। इफ मैं कोई रिमोट एरिया में जाता हूं जहां पे बिजली का प्रॉब्लम है और वहां पे जाके मैं लैपटॉप बेचना चाहूं, तो बेच सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट। तो वहां पे क्या बेचना है मुझे? वहां पे मुझे सोलर का कोई इस तरह का लाइट बेचना होगा जो बिना बिजली के सिर्फ सोलर पे चार्ज होके चल सके। उसके लिए मार्केट रिसर्चर लगते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव्स, डिजिटल मार्केटिंग, आज सोशल मीडिया ने इतना रेवोल्यूशन लाया है कि डिजिटल मार्केटर्स की हर एक को जरूरत है, एंड यू ऑल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। आपको सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह पे बीच बीच में कोई एड्स जो आप देखते हो ना, वो डिजिटल मार्केटर का काम है। डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज, सोशल मीडिया हैंडलर, शिखर धवन का, अमिताभ बच्चन का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो खुद वो कभी भी हैंडल नहीं करते, उनके लिए सोशल मीडिया हैंडलर्स रखे हुए हैं। एंड आई प्राउड टू से वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑफ 2019-20 बैच, शी वाज handling Shikhar Dhawan's Twitter account and Instagram account for last 1 year. ओके, अभी सर इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सैलरी का क्या? ये देखो, दिस इज द ओपनिंग पैकेज। एंट्री लेवल पैकेज इज 4 lakhs to 6 lakhs पर ईयर। तो कितना हुआ? 50,000, 40,000 पर मंथ। ग्रेजुएशन के बाद इतना काफी है एंट्री पॉइंट पे, बट उसके लिए आपको डेडिकेटेडली काम करना होगा आपके डिग्री कोर्स में। नाउ जर्नलिज्म, रिपोर्टर, फीचर राइटर, एडिटर, क्रिटिक, प्रूफ रीडर, कॉलम राइटर, न्यूज एंकर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया हैंडलर। अभी जर्नलिज्म में रिपोर्टर जो आप ऑन स्क्रीन देखते हो, हाँ, कैमरामैन अनूप गुप्ता के साथ मैं विनोद दुआ, ये जो बोलते हैं, कितना प्राउड फील होता है, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। न्यूज एंकर भी होते हैं, न्यूज रीडर भी होते हैं, हाँ, थोड़े कुछ डरावने भी होते हैं बट अच्छे भी हैं। फीचर राइटर, फीचर राइटर इज ए कैटेगरी। आपने व्लॉगिंग, ये एक नया ट्रेंड जो आया है,
व्लॉगिंग में क्या करते हैं, मैं किसी एक जगह पे जाता हूँ, आज मैं नागपुर में हूँ और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ नागपुर नागपुर का बेस्ट पोहा तरी यहाँ पे मिलेगा, एंड वो पूरा वीडियो डाल देते हैं। फीचर राइटर यही काम लिख के हमें बताते हैं। एडिटर हैं दोनों तरह के, लेआउट के एडिटर भी हैं, और आपको जो न्यूज में देखते हो आप, एंकर खड़ा है और उसके पीछे एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, वो काम एडिटर का है, ग्राफिक डिजाइनर का है। हाँ, कॉलम राइटर हो सकते हो आप, सोशल मीडिया हैंडलर यहाँ पे भी है, अपने अपने न्यूज चैनल के लिए अपने अपने न्यूज पेपर के सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं, और यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट पे आपको समवेयर अराउंड 2.5 to 3 lakhs पर एनम का पैकेज मिलता है। देन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी, इसमें तो बहुत सारे आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, क्योंकि फिल्म फोटोग्राफी, हाँ, फेम, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रोल्स एंड पोजीशन है। सिनेमेटोग्राफर, इन अदर वर्ड्स आप जिसको कैमरामैन कहते हो, जो पूरा सिनेमा शूट करता है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट शूटिंग, उसके पीछे बहुत बड़ा आपको काम करना होता है। कौन सा शॉट कैसे ले तो वो इंटरेस्टिंग बनेगा, सिनेमेटोग्राफर का काम। डिजिटल एडिटर, हाँ, साउंड इफेक्ट, आपको आप मल्टीप्लेक्स में जब बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी हो रहा है वो आपके आजू बाजू हो रहा है, 3D गॉगल्स पहनोगे तो और फील होता है वैसे, राइट। डिजिटल एडिटर का काम है। ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर, ओके। देन लोकेशन मैनेजर, अलग अलग लोकेशन पे फिल्म का शूटिंग होता है, और बॉलीवुड में तो बहुत मतलब एकदम से वो जो हीरो है आपका, वो मुंबई के किसी चौल में रहता होगा, लेकिन उसका और उसके हीरोइन का लव सीक्वेंस लंदन, स्विट्जरलैंड में शूट, तो वो लोकेशन मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा लोकेशन प्रेफरेबल है, कम कॉस्ट में आएगा, और कैसे उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ये सब काम लोकेशन मैनेजर का। कैमरा ऑपरेटर, सिनेमेटोग्राफर इज डिफरेंट, कैमरा ऑपरेटर मतलब कैमरा को प्लेस करना, कैमरा का प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, कैसे उसको हैंडल करना है, किस पोजीशन में वो होगा, कैसे उसको पैन करना है, कैसे जूम करना है, ये सारा कैमरा ऑपरेटर का काम है। और सिनेमेटोग्राफर का इंस्ट्रक्शन उसको होता है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सो बेसिकली सिनेमेटोग्राफर इज अ प्लानर एंड कैमरा ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटिव। प्रोग्राम रिसर्चर, हाँ, आप अलग अलग सीरियल्स देखते हो, आप अलग अलग मूवीज देखते हो, तो जो भी उसका प्रोग्रामिंग है उसके लिए रिसर्च लगता है कि कौन सा स्टोरी अभी बताना चाहिए, किस तरह से वो स्टोरी आगे बढ़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम रिसर्चर। आर्ट डायरेक्टर, आपने नितिन देसाई का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे सेट लगाता है, करजत में उनका स्टूडियो है, आर्ट डायरेक्टर है वो। वीडियो एडिटर, पूरा फिल्म एडिट करना, एंड फिल्म डायरेक्टर। फैशन फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफी के फैशन फोटोग्राफर। फूड फोटो, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा, वो मिसळ का कोई फोटो आता है, हाँ, या कोई वड़ा पाव का फोटो आता है, या फिर कोई पास्ता हो, पिज्जा हो, क्या मस्त लगता है। लेकिन उसके लिए वो एक्सपर्ट्स होते हैं, फूड फोटोग्राफर, वो उस तरह का फोटो खींचते हैं, इसलिए वो अच्छा लगता है। तो ये भी आप BA MMC के थ्रू कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफर, हाँ, इवेंट फोटोग्राफर, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। फोटो जर्नलिस्ट, फोटो एडिटर, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफी के फील्ड्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मार्केटिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, सोशल मीडिया मैनेजर। सी देयर आर lots of career opportunities in mass media if you do it well. इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केटिंग में है। मैं भगा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरी बात जब जितनी कम समय में खत्म होगी उतना मुझे टाइम मिलेगा आपसे बात करने की। ओके, अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक रिलेशन, यहाँ पे भी बहुत है। ब्रांड एम्बेसडर, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर, किसी भी ब्रांड को प्रमोट, हाँ, अभी नवरत्न तेल, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली, हाँ, सचिन तेंदुलकर, ये सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। लेकिन ये ब्रांड एम्बेसडर्स जो है उनको अपॉइंट करना, उनके साथ उस ब्रांड का रिलेशन मेंटेन करना, ये सब
पब्लिक रिलेशन के अंडर आता है। चैप्टर रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटर, कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मतलब आपके कंपनी से किस तरह से कौन सा कंटेंट मीडिया में जाना चाहिए, ये देखने का काम कंटेंट मैनेजर का है। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट वही है, कॉपीराइटर है, डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। हाँ, पीआरओ, ये नाम आपने सुना होगा, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कि गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओगे कहीं पे और आपको कि मुझे ये जानना है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको बोलते हैं हमारे पीआरओ साहब बैठे हैं, वहां से बात करो। तो पीआरओ मतलब पब्लिक रिलेशन, कंपनी का और कंपनी से जुड़ी हुई जो भी जनता है उनके बीच वो जो गैप फील करने का काम है, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करता है। उसके लिए भी बहुत आपको नॉलेज चाहिए। देखो, पब्लिक अफेयर स्पेशलिस्ट, पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इमेज बिल्डिंग या इमेज कंसल्टेंसी, वो भी पब्लिक रिलेशन के अंदर आता है। कि आपको याद होगा कैडबरी में वो कुछ वर्म्स आए थे, उसके बाद कैडबरी का सेल बहुत कम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को साइन किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जितना ऑनेस्ट एक्टर और पर्सन हमने कहीं नहीं देखा। तो जब अमिताभ बच्चन कहेंगे कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तो लोग खरीदेंगे। तो ये इसके पीछे जो दिमाग चलता है ना, वो ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का होता है। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक रिलेशन। नाउ सर, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये हम सिलेक्ट कैसे करें, मतलब करियर कैसे सिलेक्ट करें, इतना सब कुछ है। तो उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा 3D मॉडल मेरे लेवल पे डेवलप किया है। तो फर्स्ट डी है डिफाइन, दूसरा है डिसाइड, तीसरा है डिलीवर। फर्स्ट में क्या आता है, आपके स्किल्स क्या है, क्या आप अच्छा लिख सकते हो, कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर आप बन सकते हो। क्या आप अच्छी फोटोग्राफी, आपको अच्छा सेंस है पेंटिंग का या इमेज बिल्डिंग का, तो आप फोटोग्राफी में भी आ सकते हो, आप इलस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। तो ये एक स्किल सेट होता है। आप अच्छी बात कर सकते हो, आप कैमरा को अच्छा फेस कर सकते हो, तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, न्यूज रीडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू कैन डू, आप क्या अच्छा कर सकते हो, ये चूज करना पहले इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनलाइज वन स्किल सेट, एक स्किल सेट फाइनलाइज करना है। जैसे मैंने मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अच्छा लिखता हूँ। एंड देन मैं उस पर काम करता गया, अलग अलग चीजें लिखता गया, और आज मेरा कंटेंट राइटिंग में देखो, जी 24 तास के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखे हैं, मैंने दूरदर्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखे हैं, 12 साल से ऑल इंडिया रेडियो पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो वैसे आप अच्छी बात कर सकते हैं, तो आप कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड डी डिसाइड, स्मार्ट गोल्स आपको डिसाइड करने हैं। कि जो आपको आपके करियर तक अच्छे से लेके जाए, आपने जो प्लान किया है, वो जो रोड है, वो जो जर्नी है, वहां पे आपको अच्छे से वो कैरी आउट करे। इसलिए गोल्स जो आप सामने रखोगे ना, वो भी ऐसे रखने हैं जिसमें आपको मेहनत भी करनी तो है ही, लेकिन कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे आप आगे जा सकते हैं। मतलब देखो, राहुल द्रविड़ भी सेंचुरी करते थे, और सौरव गांगुली भी करते थे, और वीरेंद्र सहवाग भी करते। लेकिन राहुल द्रविड़ जो है, वो कभी कभी सेंचुरी बनाने के लिए 120, 125, 200, 150, टेस्ट मैच है तो 350 बॉल वगैरह और 100 रन। सौरव गांगुली का जो रहता था, वो 100 बॉल में 100, कभी 80 बॉल में 100, हाँ कभी टेस्ट मैच है तो 150 बॉल में 100। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो है, वो 50 बॉल में 50 मारो, 60 बॉल में 50 मारो, सॉरी सेंचुरी मारो, यही फंडे पे चालू रहता है। आज आपका विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, चेतेश्वर पुजारा है। ओके, सो सब लोग अपने सेंचुरी तक पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी पहुंचना है। उसके लिए स्मार्ट गोल्स चाहिए, इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे हम वहां तक जा सकते, कितने रास्ते हैं वहां जाने के, और उसमें से जो जिसमें रिस्क कम है, मेहनत भी काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने गोल डिसाइड किया है वहां तक मुझे इजीली लेके जाएगा। कोई रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो स्ट्रैटेजी प्लान करके जाओगे तो वो आपको
द रोड दैट यू हैव चोजन, वो कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि यार मैं नहीं अभी बस हो गया यहाँ से यू टर्न मार लेता हूँ, नो। तभी आपको सोचना है कि कहाँ स्ट्रेटेजी में मैं गलत आया। सो दिस आफ्टर डिफाइनिंग, डिसाइडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड देन डिलीवर। आई मीन चलो पैकिंग कर लिया, पहले डिसाइड किया कहाँ जाना है, ओके माथेरान जाना है, डिसाइड किया, डिफाइन किया माथेरान, ओके डेस्टिनेशन फाइनल। अभी डिसाइड करो कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कार से जाओगे, ट्रेकिंग करते हुए जाओगे, क्या प्लान है, डिसाइड किया, डिलीवर, बैग उठाओ, निकलो, execute the strategy and keep consistency and dedication where you are leading, okay, and always review लेते रहो कि क्या ये सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैंने प्लान किया था वो हो रहा है, ये एनालिसिस ऑलवेज हैव टू बी देयर। हाँ, देखो आप कितना भी गूगल मैप लगा लो, कार से ड्राइव करते हुए कोई एक मोड़ ऐसा आता है जहां पे आप कार रोकते हो, वहां पे कोई एक छोटा सा ठेला होता है या फिर कोई वहां से पासर बाय होता है, उसको कि अरे वो माथेरान के लिए रोड यही जाता है ना, आपको श्योर है यही रोड जाता है, यू नीड कंफर्मिटी, रिव्यू, इवेल्युएट कर रहे हो कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस इज द 3D मॉडल। ये अगर आप आपके लाइफ में अप्लाई करोगे, लाइफ विल बी मच इजियर, ओके, स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल भी, ओके। सो नाउ आई एम ऑन माय क्वेश्चंस, तो कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट ये बहुत ही अच्छा एक कोट है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम करोगे ना, यू लव इट, और द थिंग यू आर लविंग इट, डू दैट ओनली। ये स्कोप आपको है। 3 इडियट्स आपने देखी है। आज सिचुएशन बहुत बेहतर है, आपके मम्मी डैडी जो है वो आप जो करना चाहते हो वो करने के लिए, उसके लिए आपको पूरा फ्रीडम देने के लिए रेडी है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इट बाय हार्ट। हाँ, नेक्स्ट कोट में क्या कहा है, इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग फॉर इट, डोंट सेटल। हाँ, वो कौन सा है आपका, OnePlus, नेवर सेटल, उसके पीछे यही है। कभी भी ये महसूस मत करना अरे चलो अभी आराम से जिंदगी कटेगी। जिस दिन ये ख्याल दिमाग में आया, समझ लेना आप कुछ गलत राह पे जा रहे हो। एवरी टाइम यू हैव टू सर्च फॉर द थिंग विच यू आर लव टू डू, ओके। अभी टीचिंग मेरा पैशन नहीं था, मैं एक्सीडेंटली टीचिंग में आया, लिखना मेरा पैशन है, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके साथ साथ बाकी और सारे पैशंस मैंने कंटिन्यू रखे हैं जो इस रोड पे जाते जाते मुझे मिले। आई एम फूडी, मैं कोई भी स्टॉल पे कभी भी जाके खा सकता हूँ। आप मुझे पूछोगे खाओ गली में कौन सा स्टॉल बेस्ट है, आपको रात को 12 बजे भी पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, इतना मैं पैशनेट हूँ फूड के लिए। आई एम अ फोटोग्राफर, नेचर ट्रेल्स बहुत करता हूं मैं, ट्रेकिंग इज माय पैशन। सो ये सारी चीजें जो है ये करने मिलेगी, लेकिन एक आपको सिलेक्ट करना है जो आपकी करियर बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रुकता हूं, अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, देन यू जस्ट आस्क। आई मीन दैट विल बी बेटर कि आप मुझे पूछो और मैं बताऊं, तो उसके साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स निकलेंगे। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। घाबरू नका, मराठी आहेत का कोणी, घाबरू नका, मी इंग्रजीत बोला। कॅन यू टेल अस अबाउट BAF? I am not the right person to talk about BAF, but BAF, accounting finance, has a greater scope in financial analysts. Okay, CA अगर आप उसके साथ साथ कर रहे हो तो BAF आपको हेल्प करेगा। आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनना है, आपको अकाउंटेंसी में आगे जाना है, या फाइनेंशियल एनालिसिस, या डेटा सॉरी नॉट डेटा साइंस, दिस इज फाइनेंशियल साइंस करके एक नया ब्रांच आया है। हाँ, तो BAF के लिए या BAF करके आप वहां अच्छा करियर कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली। BBA के बारे में, अच्छा BBA अगेन इट इज BBA एंड BMS, दोनों सेम ही है, ओके, बस नाम अलग अलग है उनके, ठीक है।
वहां पे भी आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, ये तीन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप करियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज का मेरा जो फोकस है वो मीडिया, फिल्म मेकिंग उस पे है। सो इफ यू कैन आस्क अबाउट इट तो मुझे अच्छा लगेगा। नो, कंप्यूटर साइंस आई हैव नो आइडिया, सॉरी, बिकॉज मुझे साइंस कभी पसंद नहीं था, मैथ से मेरी बनती नहीं थी, तो मैं आर्ट्स का बंदा हूँ। आर्ट्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, ओके, अगेन आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक ऑन इट। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ओके, सो बेटर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्ट्स में क्या करियर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट पढ़े हैं। ओके, बहुत सारे कॉमर्स रिलेटेड फील्ड्स में ग्रेजुएशन करके, लेकिन उसमें आके बाद में कोई लॉ के लिए जा रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई और किसी स्ट्रीम में जा रहा है। सो माय पॉइंट हियर इज कि एंट्री लेवल से ही आप करियर का ऐसा एक डिग्री कोर्स चूज करो कि जिसके बाद आपको उसी का एक्सपर्टीज करना पड़े। मेजोरिटी मैंने देखा है कि कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एमबीए के लिए जा रहे हैं। ओके, बाद में फिर यूएस में जाके एमएस करते हैं, वहां पे सेटल हो जाते हैं। यस, बैफ के साथ आप कर सकते हो सीएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या बीएमएम के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछो, या फिर सारे डाउट सॉल्व हो गए वो पीपीटी से? कोई नहीं बनना चाहता, किसी को रिपोर्टिंग में नहीं जाना है, किसी को एंकरिंग नहीं करना है, इतने सारे लोग देखेंगे आपको, वो जो प्राउड फीलिंग होता है ना, वो एक रिस्पेक्ट मिलता है कि अरे एबीपी का एंकर, अरे जी का एंकर, अरे ये तो जर्नलिज्म का हुआ, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स, मेरा कल्याण का एक स्टूडेंट है, 2 साल पहले पास आउट हुआ। आप व्हाइट हैट जूनियर का वो ऋतिक रोशन का एड देखते हो, तो वो ऋतिक रोशन का एड उसने शूट किया है पूरा। व्हाट अबाउट बीए? अच्छा, बीए इज अ वेरी, आई मीन इट्स अ ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स। ओके, बीए करके आपको फिर से कोई एक स्पेशलाइजेशन करना होगा, क्योंकि बीए डायरेक्टली आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वाया वाया आप करोगे तो है। सो बेटर आई प्रेफर कि आप बीए एमएमसी के लिए जाओ, जहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज व्हाट हैपेंस, बीए में आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। देन कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करते हो एज अ फाइनल टीवाई के लिए, तो वो लिटरेचर होगा, या तो हिस्ट्री होगा, या पॉलिटिकल साइंस होगा, साइकोलॉजी होगा। ओके, उसके बाद आपको मास्टर्स करना है, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब। पॉलिटिकल साइंस मैं एडवाइस करूंगा, जिनको एमपीएससी यूपीएससी के लिए जाना है वो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ले, विच इज बहुत बहुत उसको स्कोप है आगे एमपीएससी यूपीएससी में। बट डायरेक्ट बीए, मतलब बीए ग्रेजुएट होने के बाद देर इज नो, आई मीन डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। बँकिंग मध्ये करायचं असेल तर बँकिंग अँड इन्शुरन्स बीबीआय आहे. ओके, आणि बँकेच्या एक्झाम्स द्यायच्या. दक्ष राठौड़, यस. बीकॉम, बीकॉम मैंने कहा ना, बीकॉम को अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि बीकॉम का, बीकॉम के साथ साथ आपको कुछ एक करना ही होगा, या तो सीएस या तो सीए. ओके,
ओके, या तो फिर आप बैफ ले लो या बीबीआई करो। कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता होगा तो बी, ओके, उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेज है। तो बट द थिंग इज अगेन, बीए एंड बीकॉम आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्सेज। उसके साथ आपको कुछ दूसरा करना ही होगा, तो ही इंडस्ट्री आज आपको एक्सेप्ट करेगी। नॉर्मल बीए बीकॉम को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती। बीएससी आईटी भी बहुत सारे हो गए अभी, उसमें स्पेशलाइज आपको आगे जाके कोडिंग में है, सिक्योरिटी में है, किस में आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ कर रहे हो। हाँ, कल्पेश, बीएफएम फाइनेंशियल मार्केट इज गुड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल एनालिस्ट। हाँ, बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में आपको अगर आगे करियर करना है तो बीएफएम इज द बेस्ट फॉर इट। बीसीए आई हैव नो आइडिया, आई मीन इट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बट मैंने कहा जैसे कंप्यूटर की मेरी साइंस की बनती नहीं है। आई डोंट नो अबाउट अटेंडेंस, दैट यू हैव टू आस्क योर कॉलेज। बट अटेंडेंस इज ऑब्वियसली 75% से कम रहेगा तो यूनिवर्सिटी का रूल है, एग्जाम बैठने नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट स्टडीज एंड बीबीए आर बेसिकली द कोर्सेज हैव सेम सिलेबस। सिलेबस मतलब कंटेंट सेम है, उसका नाम अलग अलग रहेंगे। तो मैनेजमेंट स्टडी करने के बाद आप मार्केटिंग में जा सकते हो। मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर, जो अभी मैंने करियर दिखाया ऑप्शंस, वो आपके लिए ओपन है। फाइनेंस में जाना है तो आप इंडस्ट्री फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंशियल पोजीशन पे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर, हाँ, मीडिया प्लानर बायर भी हो सकते हो आप वहां से। एंड एचआर में एचआर मैनेजर, हाँ, पॉलिसी मेकिंग में आपको जाना है तो एचआर पॉलिसी मेकिंग में आप जा सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज करना है। तो ये बीएमएस के लिए ऑप्शंस है। कॉमर्स के ज्यादा है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से, आर्ट्स के नहीं है, सो दे आर नॉट। Law, as principal sir have said that in coming years they are starting with, लेकिन लॉ के लिए भी स्कोप है आपको। प्रॉब्लम ये है ना, ये जो सारे आप सवाल पूछ रहे हो, ये ट्रेंड जो चालू है ना उसके बारे में पूछ रहे हो, लेकिन क्या सचमुच आपको ये करना है? दैट इज व्हाट, जो मेरा 3D मॉडल है ना, ये अपने आप को अप्लाई करो कि डिफाइन आप अच्छा क्या कर सकते हो। आधे से ज्यादा आपको पता ही नहीं है आप क्या कर सकते हो। इन माई इनिशियल डेज ऑफ टीचिंग, जब भी बीएमएम बिगिनिंग स्टेज पे था, और तभी गैप स्टूडेंट्स को भी कभी कभी लिया जाता था, इनटेक किया जाता था। कितने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग 2 साल छोड़ के, हाँ, 1 साल छोड़ के, एक दो मेरे स्टूडेंट थे वो लॉ छोड़ के यहाँ पे आए थे, बीए छोड़ के बीएमएम में एडमिशन लिया, एंड नाउ दे आर सेटल्ड वेरी वेल इन मीडिया। ओके, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग विथ डिज्नी स्टूडियो यूएस। वो बंदे ने इंजीनियरिंग से सेकेंड ईयर में एडमिशन कैंसिल करवा के उसने बीएमएम लिया था। एमए का, एमए इन एनी फील्ड, बीए करते हो तो एमए करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है वो। जैसे मैंने कहा कि बीए को आपको कोई पूछेगा नहीं। देयर इज अनदर ब्रांच विच गेट्स ओपन फॉर यू, बट फॉर दैट यू हैव टू बी ready and capable, that is teaching. ओके, बीए एमए करने के बाद जो आपका एमए और बीए का सब्जेक्ट है, उसमें आप टीचिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास वो टीचिंग स्किल्स होने चाहिए। ऐसे ही आपको सिर्फ डिग्री पे कोई जॉब नहीं देगा। सी, आपके आपकी जो सोच है, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि आपकी सोच 10 साल 15 साल पुरानी है अभी भी। आजकल डिग्री को इंपॉर्टेंस नहीं है, आप क्या अच्छा कर सकते हो प्रैक्टिकली, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो जिसकी आपने डिग्री ली है। सो जैसे मैं कहता हूं मैं कंटेंट लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैंने एमसीजे किया है, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म, तो मेरे
पास अगर कोई न्यूज आया और वो मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, वो डिग्री का कुछ यूज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ओके, डोंट फील बैड, लेकिन आपके ये जो 12th के मार्क्स है ना, वंस यू आर गेट एडमिटेड इनटू डिग्री, वो पुराने हो जाएंगे, उसको कोई पूछेगा नहीं। इंटरव्यू में जाके बताओगे सर 12th में मुझे 95% आए थे, वो बोलेगा उसको बाजू में रख, तो इंटरव्यू के लिए आया है, कंटेंट राइटिंग के लिए, तो ये कॉपी है, मतलब ये ब्रीफ है, इसमें से मुझे अच्छा कॉपी लिख के दिखा। अगर आप वो कर पाए तो ठीक। तो बीए में भी आप, या एमए में, या जो भी बीकॉम, जो भी फील्ड में आप करियर कर रहे हो, उसमें अगर आपको प्रैक्टिकली करने की एबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, हाँ, तो देर इज नो स्कोप टू एनी डिग्री, वेदर यू आर युनिव्हर्सिटी टॉपर. नंतर कशाला देते, आतापासूनच द्यायला सुरुवात कर ना. 18 वर्ष पूर्ण झाले की यू आर एलिजिबल. अभी से शुरुआत करोगे तो तब कब जाके आपका नंबर लगेगा. सी, ऑल ऑफ यू आर, जैसे मैंने कहा ना कि 10-15 साल की पुरानी सोच है आपकी. आप एक सिक्योर जॉब चाहते हो, और वही आज इंडस्ट्री में नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम लोग जब ग्रेजुएट होके यहाँ से निकलोगे, मास्टर्स परस्यू करने लगोगे, तब तक ऑलमोस्ट 90% बैंक्स प्राइवेटाइज हो चुके होंगे. तो आपको कहीं पे भी सिक्योर जॉब नहीं मिलेगा. इफ यू आर प्लानिंग बैंक के एग्जाम दूंगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चिपक गया उधर, बस गवर्नमेंट नहीं. अभी वो जमाना नहीं रहा. आपके मॉम डैड के टाइम पे ठीक था. देऊ शकतो ना. काही बँक्सच्या असतात एक्झाम्स. फायनल इयर तुमचं जर चालू असेल ना, त्यावेळेला तुम्ही देऊ शकता. मग तुमचं जर सिलेक्शन झालं तर तुमचा रिझल्ट लागेपर्यंत तुमचं जे अपॉइंटमेंट किंवा ऑफर लेटर आहे ते होल्डवर ठेवतात. रिझल्ट सबमिट केल्यानंतर लगेच अपॉइंटमेंट लेटर मिळतं. या, आय थिंक डाऊट्स. ओके, थँक्यू. खूप बरं वाटलं. माझ्या फील्डचे रिलेटेड डाऊट नाही आले, पण इट्स ओके. डाऊट आहेत तुम्हाला याच्यातच तुम्ही विद्यार्थी आहात त्याचं लक्षण आहे. ज्या दिवशी तुमच्या मनात शंका येणार नाही, तुमच्यातला विद्यार्थी मेला, एवढं लक्षात ठेवा. हे कंक्लुडिंग स्टेटमेंट है. जिस दिन आपके मन में किसी भी चीज के लिए कोई भी सवाल या डाउट आना बंद हो गया, उस दिन आपके अंदर का विद्यार्थी, स्टूडेंट मर गया, ये समझो. और अगर आपको करियर में बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है, तो मरते दम तक आपका जो अंदर का स्टूडेंट है, हाँ, the learning phase that has to be there till the end of your life, then only you can achieve great things. So over to you, ma'am. Thank you once again. Thank you, sir, for this informative session. I'm sure our students must have definitely learned a lot about this new stream and the career opportunity that it brings along with it. And this will definitely enable us to have admissions for the BMM stream also. Thank you all. I think now we can end with this session. Thanks everyone for attending.